हम टीआरएस हुकूमत और केसीआर साहब का साथ दे रहे हैं, तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने और देहातों और कस्बों की तरक्की देने के लिए बरक़ी की शरहों और प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह तरक्की की खातिर इस बोझ को बर्दाश्त करें। ताहम उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबक़ात पर इस इजाफे का बोझ नहीं डाला जाएगा। रियासती असम्बली में पल्ली प्रगति पर मुख्तसर से मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत आवाम को तारीकी में नहीं रखना चाहती और ना ही धोखा देना चाहती है। अच्छी हुक्मरानी के लिए हमें ये इजाफा करना होगा। टैक्स में इजाफा उन्हीं तबक़ात के लिए होगा जो अदा करने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पंचायत राज कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। गैर जिम्मेदारी और बदनवानियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरपंच और अहदेदारों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी वरना फिर उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी अपने अपने मौजे की तरक्की के लिए मौजे में 100% टैक्स वसूल करें। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत आइंदा 5 साल के दौरान तमाम 12,571 पंचायतों को फीकस 90 लाख रुपए जारी करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 500 नफूस से कम आबादी वाले 899 पंचायतों को 5 साल के दौरान कम से कम 40 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। క్రిమేటోరియం సామూహిక శ్మశాన వాటిక ఎట్లా పెట్టింది మీరంటే మాకు మోహన్ దారియా గారు 300 గ్రామాలు కలిపి మా సొసైటీ పేరు వన్ రాయ్ సొసైటీ అంటారు, చాలా ఫేమస్ ఇండియాలో. మా సొసైటీ నియమం పెట్టుకున్నాం మేము, ప్రతి గ్రామంలో ఎవరు చనిపోయినా సరే ఒక దహన వాటిక ఉండాలి. కులం లేదు, మతం లేదు, జాతి లేదు. గ్రామ దహన వాటిక, గ్రామ శ్మశాన వాటిక. ఎవరు చనిపోయినా అక్కడ దహన ప్రక్రియ చేసుకోవచ్చు. అధ్యక్ష, మనం ఎవరం కూడా 1000 ఏళ్ళు బతకం, ఎవరు కూడా రాలే 1000 ఏళ్ళు బతకడానికి. మనకు అయ్యగారు కూడా ఏడాది దీవెన పెట్టినా శతమానం భవతి అంటారు తప్ప సహస్రమానం భవతి అని అయ్యగారిని చెప్తాడు అధ్యక్ష. 100 ఏళ్ళు నిండుగా బతుకు బిడ్డ అంటాడు. 1000 ఏళ్ళు బతకని ఏ అయ్యగారు కూడా చెప్పాడు. కారణమైన ఆయనకి ఇష్టం లేక కాదు, మనిషి బతకడు కాబట్టి. 1000 ఏళ్ళు బతుకుడు అసహజం కాబట్టి నిండు 100 ఏళ్ళు మంచిగా ఆరోగ్యంతో బతుకొని దీవెన పెడతారు. 100 సంవత్సరాలు దాటి మనం బతికే అవకాశం లేదా అధ్యక్ష? కొద్దిమంది అక్కడనో ఇక్కడనో 106 ఏళ్ళు 103 ఏళ్ళు పేపర్లలో వస్తూ ఉంటే తమాషా తప్ప మనిషి ఉజ్వలంగా బతకగలిగేది 100 ఇయర్స్ లోపే. మనమందరం కూడా పోయేవాళ్ళమే. కాబట్టి పోయే వాళ్ళను సంస్కారయుతంగా పంపించడం అనేది మన సమాజం యొక్క సంస్కారం, మన దేశ సంస్కారం. చాలామంది మనం చూసినాం, ఒరిస్సాలో ఒక ఆయన 20 కిలోమీటర్ల సైకిల్ మీద పెట్టుకొని భార్య శవాన్ని మూసిండని. భూమి లేని వాళ్ళు చనిపోతే అసలు ఎక్కడ కాలబెట్టుకోవాలి, ఎక్కడ దహనం చేయాలి, ఎంత బాధ. ఆ బాధ మనకే ఎదురైతే మనం ఎంత కుమిలిపోతాం. ఇవాళ ఆలోచన చేయలేదు అధ్యక్ష. మేము ఫస్ట్ టైం ఆలోచన చేసినాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అన్ని గ్రామాలలో దహన వాటికలు, వైకుంఠ ధామాలు తయారు కాబోతూ ఉన్నాయి. అటువంటి తెలంగాణ కండ్లారా మనం చూడబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కులరహిత, మతరహిత, సామూహిక దహన వాటికలతో, సామూహిక శ్మశాన వాటికలతో తూడుకున్న గ్రామాలను మనం చూడబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. వాటికి 10 కోట్లు కానీ 20 కోట్లు కానీ ఎన్నైనా సరే కనీసం 5 లక్షల ఆదాయం ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చే విధంగా, అంటే ఒక 5 ఇయర్స్లో 40 lakhs వాళ్ళ ఆదాయం కాకుండా అధ్యక్ష, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఇచ్చే డబ్బులే. అది ఈరోజే ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేస్తాం, జీవో కూడా రిలీజ్ చేస్తాం. పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గారు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈ మధ్యన అధ్యక్ష మా ఇంటర్నల్ సర్వీస్లో పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గారిని అభినందిస్తూ టాప్ పర్ఫార్మింగ్ మినిస్టర్ వారికి అవార్డు కూడా వచ్చింది అధ్యక్ష. కారణం ఏంటంటే పల్లె ప్రగతి బాగా జరుగుతూ ఉంది, విజయవంతంగా పోతూ ఉంది. వారు కూడా కృషి ఉందని చెప్పి చాలా పర్యటనలు చేసినా తీసుకున్నారని చెప్పి పంచాయతీరాజ్ వారి సిబ్బందిని వారిని అభినందిస్తూ సర్వేలు కూడా వచ్చినాయి అధ్యక్ష. నేను పోవడం కోసం చెప్పడం లేదు, పనిచేస్తే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏమైనప్పటికీ ఈరోజు తెలంగాణ, అది బట్టి విక్రమార్క గారు కావచ్చు, కేసీఆర్ కావచ్చు, ఇంకోళ్ళు కావచ్చు, మేము ఎక్కడికి పోయినా, ఢిల్లీకి పోయినా, ఇంకొకటికి పోయినా గర్వంగా తలెత్తుకొని చెప్పగలుగుతాం ఏంటంటే, ఎస్ 12,751 గ్రామాలలో చెత్త విసర్జన కేంద్రాలు ఉన్నవి, సామూహిక దహన వాటికలు ఉన్నవి, మంచినీటి సప్లై ఉన్నది, అదేవిధంగా ట్రాక్టర్లు కలిగి ఉన్నవి, అదేవిధంగా జోకుల కోసం, తమాషా కోసం, ఫోటో ఐటెం కోసం చెట్లు కాదు, గ్రామంలో ప్రపంచంలోనే ఎక్కడ లేదు అధ్యక్ష. అయ్యేలా ఇండియా కాదు, ఎంటైర్ వరల్డ్లో కూడా లేదు.
నేను నెట్లో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూసినాను, ఎక్కడ లేదు. ద యూనిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ప్రతి గ్రామంలో మొక్కలు పెంచడానికి నర్సరీలు కూడా ఇలా ఉన్నాయి. ఇది నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను, నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. మేము చెప్పినాం, కలెక్టర్లను పోయి పడుకోమన్నాం, డిపిఓలను పోయి పడుకోమన్నాం, ఎంపీఓలను పోయి పడుకోమన్నాం. ఉత్తగా ఆశామాషిగా చెప్తలేము అధ్యక్ష. 100% పోస్టులన్నీ నింపేసినాం. ఊరికే తమాషకు చెప్తలేం. విలేజ్ సెక్రటరీ నుంచి డిపిఓ వరకు, మామూలు పోస్ట్ నుంచి జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ వరకు కంప్లీట్ నింపినాం. ఎక్కడన్నా గ్రామంలో ఒక సెక్రటరీ కనుక పోస్ట్ తక్కువ ఉంటే, ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఖాళీ ఏర్పడితే జిల్లా కలెక్టర్లకు అధికారం ఇచ్చినాం. విత్ ఇన్ 1 hour నువ్వు అపాయింట్ చేసుకో, ఎస్ యు ఆర్ పర్మిటెడ్ అని అధికారం ఇచ్చినాం. వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్క రూపాయలు జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర పెట్టినాం. ఎక్కడైనా మిస్సింగ్ లింక్ ఉంటే మీరు చూడండి, దాన్ని చెడిపోని ఎక్కండి అని చెప్పి ₹1 కోటి జిల్లా కలెక్టర్ దగ్గర ఫండ్ పెట్టినాం అధ్యక్ష, వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. అదేవిధంగా కలెక్టర్లు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి అనేక పనులలో వాళ్ళకు అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ అనే పోస్ట్ సృష్టించి ప్రతి జిల్లాకు ఒక అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ చేసినాం అధ్యక్ష. ఒక ఐఏఎస్ స్థాయి అధికారి కేవలం లోకల్ బాడీస్ మీద ఉంటాడు అధ్యక్ష. మున్సిపాలిటీలు కానీ గ్రామ పంచాయతీలు కానీ వాటి మీద ఉంటాడు, ఇంకో పని చేయడం ఆయన. జాయింట్ కలెక్టర్లా కాదు, అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ ఆ పోస్ట్ కూడా వేసినాం అధ్యక్ష. ఒక 3-4 జిల్లాలో తక్కువ ఉంటుంది, అది కూడా నింపేస్తా ఉన్నాం. నేను నిన్న మొన్ననే చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని రిక్వెస్ట్ కూడా చేసినాను. పక్కడబందీ వ్యవహారం అంతా చేసినాం. ఏదో తమాషకు ఫోటో దిగి పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ గారు దిగి లేకపోతే కేసీఆర్ దిగి సంతోషపడే ఉద్దేశం మాకు లేదు. 100% అనుకున్న ప్రకారంగా ఈ పల్లె సీమలు పచ్చబడాలి, పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. కరోనా బీరోనా లాంటి వ్యాధులు మన తెలంగాణ పల్లెకి రావాలంటే గజ్జన వనికి సావాలి. ఆ విధమైన పరిస్థితులు రావాలి, అంటువ్యాధులు రావద్దు, ఈ పిచ్చి ఉండొద్దని చెప్పి తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఏది ఏమైనా సరే దాన్ని కఠినంగా అమలు చేస్తాం, ఆ ఫలితాలు సాధిస్తాం. జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నా. గౌరవ శాసనసభ్యులందరూ కూడా నేను చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా, దయచేసి పల్లె ప్రగతికి పట్టణ ప్రగతికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. మనం నేల విడిచి సాయం చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అన్ని గ్రామాలు అభివృద్ధి అయితే, అన్ని పట్టణాలు అభివృద్ధి అయితే, అన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గానే స్వచ్ఛత వస్తుంది, ఆటోమేటిక్గానే క్లీనరీ వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇంకెక్కడో మన ప్రోగ్రాం ఉందని ఇవి వదిలిపెట్టి మన గ్రామాలు మన పట్టణాలు వదిలిపెట్టి ఇంకేందో చేయడం కరెక్ట్ కాదు. దయచేసి తమకున్న సర్వశక్తులొడ్డి, తమకున్న విస్తృత అధికారాలు అవకాశాలు వినియోగించి ఈ పల్లెలను పట్టణాలను పూర్తి స్థాయి మనసు పెట్టి అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ సందర్భంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా నా దృష్టికి, మినిస్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకురండి, ఇమీడియట్గా అటెండ్ అవుతాం. దీని నిధుల కొరత రానీయం. నా దగ్గర కూడా అధ్యక్ష బడ్జెట్లో ఇప్పుడు మంజూరు చేయబోతా ఉన్నారు. ఎస్డిఎఫ్ కింద కూడా ఒక 3,500 crores పెట్టినాం. పట్టణాలలో కానీ లేదు, బట్టి విక్రమార్క చెప్పినట్టు ఇందాక ఏదైనా చిన్న గ్రామాల్లో వచ్చే గ్యాప్స్ ఉన్నా వాటిని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే అట్లాంటి స్పెషల్ ఫండ్ కూడా క్రియేట్ చేసి పెట్టినాం. కాబట్టి వాటికి కూడా లోటు రానీయం, అవి కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తాం. కాబట్టి ముందుకోదామని తెలియజేసుకుంటూ సభ్యులు సూచనలు ఇచ్చిన వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాజకీయాల కంటే ఎక్కువ కూడా మన పట్టణాలు ఇండియాలోనే ఒక ఆదర్శమైనటువంటి పట్టణాలుగా, ఇండియాలోనే ఆదర్శమైనటువంటి గ్రామసీమలుగా తయారు చేయడంలో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములను కావాలని కోరుతూ తమరు అవకాశం ఇచ్చేందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. సెలవు అధ్యక్ష. कायदा मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली में वजाहत की है कि उनकी पार्टी मजलिस टीआरएस को उसूलों की बुनियाद पर तायद दे रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मजलिस के पेश करदा मंशूर मुतालबात को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उन पर संजीदगी के साथ अमल दरामद भी किया है। अकबर अवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत में CA, NPR और NRC को लेकर जो खौफ और सरासमगी पाई जाती है उसको दूर करे और NPR की इजाज़त न दे। उन्होंने इस ज़मन में असम्बली में क़रारदाद मंजूर करना पड़े तो वो भी करके दिखाएं। NPR सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि कमज़ोर और पिछड़े तबक़ात के मफादात की मग़ायर भी है। कायदा मजलिस ने रियासती वक्फ बोर्ड की हालत पर जमकर तनकीद की और वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का पूरा नहीं तो नहीं बेशतर एडमिनिस्ट्रेशन कुप्पा है, ध्यानदार और काबिल स्टाफ की कमी है और इसी के सबब उसका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जिसको ठीक करना ज़रूरी है। आउटसोर्सिंग और कंट्रैक्ट की बुनियाद पर लोगों को मुलाजमत दी गई है, जिससे काबिल लोगों की हल तलफी हुई है। अकबर अवैसी ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की तरफ खास तवज्जो दें, इससे पहले कि इदारा बदगुमानियों का अड्डा बन जाए। हम TRS हुकूमत और KCR साहब का साथ दे रहे हैं, तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूं
कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने जब जब भी इस ऐवान में या फिर किसी भी मुलाकात में चीफ मिनिस्टर साहब से, चाहे शहर हैदराबाद के मसाइल हो, चाहे रियासत तेलंगाना के मसाइल हो, चाहे माइनॉरिटीज़ के मसाइल हो या मुसलमानों के मसाइल हो, तो उन्होंने न सिर्फ संजीदगी के साथ सुना है बल्कि इन मसाइल को हल भी किया है। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन TRS की हुकूमत की तायीद कर रही है। और अगर मैं जरूरी समझता हूं कि वो लोग जो इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया क्या हुआ, उनको बताने के लिए मैं अचीवमेंट्स भी गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले शादी मुबारक स्कीम के ताल्लुक से कहूंगा कि शादी मुबारक स्कीम के जरिए मुस्लिम अक़लियतों का जो फायदा हुआ है वो जुमला 1,44,000 लड़कियों की शादियां हुई हैं और जिस पर 1,020 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 1,020 करोड़। और इसका मुतालबा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन ने किया था। और 5 साल में जो मुकम्मिल बजट माइनॉरिटी वेलफेयर पर खर्च हुआ है, अगर उसको देख लेते हैं तो 5,323 करोड़ रुपया, दैट मीन्स 5,323 करोड़। सो प्रोवाइडिंग बजट थ्रू ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल का मुतालबा हमने मजलिस ने किया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने शादी मुबारक स्कीम को ग्रीन चैनल में किया, टिमरी स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी ग्रीन चैनल में किया। Sir, non-statutory benefits on par with SC and STs extending to minorities. Geo was released for 16 additional schemes, sir. Number 4, sir. चौथा जो मैं कहूंगा कि अचीवमेंट है वो ये था। और 5वां, बजट एलोकेशन इंक्रीज फ्रॉम 1,030 करोड़ in the year 2014 and 15 to 2,000 crores in 2018 and 19, then the reduction to 1,518 crores in the year 2021 due to financial crisis, I would say, sir. Sir, 6th is the minority residential schools. More than 1,250 crores have been spent to open 204 schools and 83 junior colleges, sir. 1,250 crores have already been spent, sir. Sir, the 7th achievement, I would say, the Chief Minister's overseas scholarship. More than 1,680 students have got the benefit, and sir, 231 crores have been spent so far, sir. This again was a demand made by the MIM, sir, which was agreed. There is one more, Mukhtar Hussain. He is also an intermediate. He's become superintendent, sir. Sir, and again, Rahim Farooqi Inter, Mohammad Mazharuddin SSC, Sayyid Shakil Hassan SSC, Mohammad Fayyaz SSC, junior assistant, sir. And what are their salaries, sir? 87,000, 79,000, 71,000, 73,000. Assistant secretaries, all SSC, sir. And sir, there is one Mr. Akhil. There is one by the name Mr. Akhil who is office subordinate, sir. What is his qualification, sir? His 3rd class pass, sir. 3rd class, sir. And what is his salary, sir? Sir, his salary is 54,033, sir. Sir, Waqf board doesn't have any driver, sir. No, car, sir, sorry. एक भी गाड़ी नहीं है, 2 ड्राइवर्स हैं, सर, 2 ड्राइवर्स। ड्राइवर की तनख्वाह क्या है, सर? 51,988। 2 ड्राइवर्स, सर। आप बताइए, सर, ये क्या है? ये ऑनरेबल स्पीकर, सर, व्हाट इज दिस? मेरा दिल जलता है, साहब। I had a office boy who types in my office my speeches. I dictate him. So he was typing this and he stopped for a second and he said, "साहब, आप इतने पैसे नहीं दे रहे मेरे को वक्फ बोर्ड में नौकरी तो भी लगा दो, साहब." क्या है, सर, ये? This is what my heart burns, sir. दिल को जो तकलीफ होती है ना, साहब, इस वास्ते होती है कि किस तरीके से लूट रहे हैं, सर। किराए नहीं आते, साहब, बराबर कलेक्ट नहीं होते। 50 बरस से 200 रुपए का किराएदार है, सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से डिमांड करूंगा, सर, या तो सीबीआई को दे दीजिए, सर, इंक्वायरी के लिए, या सीआईडी के जरिए करिए, या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी करना जरूरी है, सर। आई डिमांड दिस, सर। आई डिमांड दिस, सर। दिस इज वेरी नेसेसरी, सर। So much of acres of lands are just there, sir, occupying, जिसको चाहे ले रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, सर,
हुसैन शाह वली की दरगाह की जमीन के लिए टीआरएस और मैं भी हाईकोर्ट में जाकर हम लड़े सर, लड़े, ऑर्डर है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसको कोई नहीं देखते हैं साहब। आज आप बताइए सर, दिल को तकलीफ होती है, दिल को तकलीफ होती है सर। इतने इतने वक्त प्रॉपर्टी सर, आपके निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़े पहाड़ की दरगाह सर, इतनी बड़े पहाड़ की दरगाह, उसका गल्ला दे देते हैं साहब किसको भी, जिसको चाहे ले लेता है, पैसे उठाता है, लेके चले जाता है साहब। जहांगीरपुरा की दरगाह गल्ला कोई भी ले लिया, बस कमाया चले गया साहब। कैसे साहब ये बताइए सर। निजामाबाद में मेन एरिया में सराय है सर, आपको मालूम होगा, बाजार में, वो भी आज कब्जे में है, उसको खाली नहीं कराते सर। नाउ आई वुड से व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल सर, कि गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है सर। एससी एसटी बीसी के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स है, दे आर रनिंग ऑन देयर ओन लैंड सर। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रनिंग इन रेंटेड बिल्डिंग्स सर। अर्लियर also I have requested sir, government should allot land. If there is no availability of government land sir, waqf land can be allotted for this purpose. एक आदमी के फायदे के बजाय पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सकता है साहब, और काफी जमीन बच सकती है, लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए सर, या तो ईमानदार लोगों को लाकर बिठाइए। आज वक्त आया है कि वक्फ बोर्ड को ये बेईमान लोगों से हमको साफ करना होगा सर। बार बार हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कितनी औकाफी जायदादें हैं सर। आई हैव द लिस्ट सर, इफ आई हैव टू गो इन द लिस्ट सर, दिस हाउस विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी द एक्सटेंट ऑफ द वक्फ लैंड सर। बड़े पहाड़ की दरगाह मैंने कहा, बाबा शरफुद्दीन साहब की, चेंगी चिल्ला की, आलूर के पास 1800 एकड़, चेंगी चिल्ला में 700 एकड़, मीर मोमिन चुक दरगाह की उसकी 500 एकड़, यहां हाईटेक सिटी में साहब, वहां पे जो छोटा एक चार मीनार बोलते हैं वहां पर सर, आलमगिरी मस्जिद, कितने सर, देयर आर सो मेनी लैंड। और फिर हो रहा क्या सर, वेयर आर दोज लैंड्स गोइंग? कोई एक आदमी अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है सर। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करिए बल्कि ग्रांट इन एड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करिए सर। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डिमांडिंग दैट अ वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड सर, जो ये वक्फ के प्रॉपर्टीज को डेवलप कर सके सर। इसमें देखिए, आई जस्ट गॉट नाउ सर, आशुर खाना नाले मुबारक सर, 3000 स्क्वायर यार्ड्स, एट खैरताबाद सर 500 स्क्वायर यार्ड सर। फिर यहां शादान कॉलेज के सामने वन मोर लैंड सर, नारायणगुड़ा ऑपोजिट रेड्डी हॉस्टल सर 850 स्क्वायर यार्ड्स। इसमें साहब हाईटेक सिटी में खानामेट विलेज में 1.15 गुंटाज ऑफ वक्फ लैंड सर, और उस पे सर सुल्तान बाजार में 700 स्क्वायर यार्ड, एसआर नगर में अमीरपेट में सर 4 एकर्स ऑफ लैंड, एबिट्स में 2000 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड, again in Khairtabad 6000 square yards of land, Khairtabad again 6 acres of land sir, 6 acres sir। ये शाम थिएटर, ये दूसरे थिएटर्स जो पीछे है साहब, वो भी एक वक्त का है साहब। पंजागुट्टा सर 7 acres of land, मस्जिद खंबर अली सर एनक्रोच सर, टैंगबंड में 2 acres, वायसरॉय होटल सर, दिस इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर, वायसरॉय होटल दैट इज ऑल्सो वक्फ लैंड सर। सर अत्तापुर सर, हजरत मीर महमूद साहब की पहाड़ी सर, ये वक्फ लैंड दैट इज ऑल्सो एनक्रोच्ड। एंड देयर इज वन न्यूज़पेपर which always criticizes MIM, always criticizes the TRS, always criticizes KCR Saab, always criticizes Akbar Owaisi, always criticizes Asad Owaisi. What are they doing? And you know sir, the residents of that Urdu papers editors is also Waqf land, and that Urdu papers office, that is also Waqf land. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत।
गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर में कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के बाद अब लोगों के खाने पीने की तरजीहात और पसंद में भी तब्दीली आई है और इसका असर चिकन और अंडे के कारोबार पर पड़ा है। गैर ज़रूरी इत्तलात और अफवाहों के सबब आवाम चिकन खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। हालांकि पोल्ट्री सनत और मुहकमा नज़रबंदी की तरफ से बार बार वजाहत की गई है कि पोल्ट्री सनत कोरोना वायरस से पाक है। नामपल्ली की मुर्गी मार्केट में किए गए एक सर्वे के मुताबिक चिकन और बॉयलर चिकन का कारोबार मंदा पड़ा हुआ है। एक हफ्ता कबल लाइव मुर्गी की कीमत 120 रुपये किलो थी, लेकिन अब यही 4 लाइव मुर्गियाँ 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं, फिर भी कोई ख़रीदार नहीं है। अंडों के कारोबार का भी कुछ यही हाल है। अंडे की कीमत 5 रुपये से घटकर अब 4 रुपये हो गई है, लेकिन लोग इसको खरीदने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ बकरे की गोश्त की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। कई मकामात पर बकरे का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। हालांकि इसकी कीमत कुछ दिनों पहले तक 550 और 600 रुपये के दरमियान थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर परवेज़ अली, नामपल्ली चिकन मार्केट प्रोपराइटर, HKGN बॉयलर मार्केट। देखिए, जो लोग कोरोना वायरस जो बोल रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं। और हमारी मार्केट में जो है लोग अक्सर जो है चिकन लेने के लिए आते हैं और हर कोई जो है ये एक ही सवाल कर रहा है, भाई चिकन से कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो हम सबको जो है हम यही इत्तला दे रहे हैं कि भाई चिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो गवर्नमेंट ही जो है बैन कर देती थी। तो परसों भी जो है नेकलेज रोड पे KTR साहब भी आकर चिकन खाए हैं और परसों हमारे नामपल्ली चिकन मार्केट में भी जो है हम लोगों को चिकन खिलाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग सब जने चिकन खाए हैं। लोग अफवाहें व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जो है अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग चिकन खा सकते हैं। और ऐसा कोरोना वायरस अगर चिकन में अगर कोई आता था तो गवर्नमेंट जो है सप्लाईज बंद कर देती थी, तो लिहाजा चिकन में कोई वायरस नहीं है। और एक बात, अपने हैदराबाद में नहीं, पूरे इंडिया में अपन 100% के ऊपर जो है अपन पका देते इसको, तो वो पकाने की वजह से जो है चिकन में कोई भी वायरस अट्रैक्ट नहीं होता। तो लिहाजा जो है अपने पास कोई वायरस नहीं है। आप इंशाल्लाह चिकन खाइए। आप लोग दिमाग से अपने ये सब चीज़ें निकालिए कि कोरोना वायरस आप अल्लाह के ऊपर यकीन करिए और अल्लाह ताला अपने को जो है जो हलाल चीज़ रखा खाने के लिए वो हम बेशक खा सकते हैं और ये चीज़ खाना ही है हमको इंशाल्लाह। एक खानगी बस के ड्राइवर और उसके अमले की हादत दिमागी की वजह से ऑरेंज ट्रैवल्स की बस के 26 मुसाफिरीन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि बस मुसाफिरीन बस के शोलापोश होने से चंद मिनट कबल ही बस से उतर गए थे। बताया जाता है कि यह बस मुंबई से कल रात हैदराबाद के लिए निकली थी और आज 8 बजे के करीब संगारेड्डी में रामचंद्रपुरम के करीब पहुंची। ड्राइवर ने इंजन में से धुआं निकलते हुए देखा और कौमी शाहराह 65 पर बस को सड़क के किनारे रोक दिया। बस के अमले ने मुसाफिरीन से फौरी बस से निकल जाने की ख्वाहिश की। कोरोना वायरस का खौफ लोगों पर इस कदर छा गया है कि लोग आजकल आम मकामात जैसे पार्क्स, सिनेमा घरों और शॉपिंग मॉल में जाने से कतरा रहे हैं। शादी ब्याह की तकारीब पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है। कई तकारीब में लोग शिरकत से ही गुरेज कर रहे हैं तो कुछ तकारीब में जल्दी वापस हो रहे हैं। एक दूसरे से गले मिलने और चूमने से भी परहेज किया जा रहा है। अवाम में शऊर की बेदारी का नतीजा है कि लोग अब मास्क के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। बड़ी बड़ी होटलों और रेस्टोरेंट के साथ साथ छोटी मोटी होटलों और सड़क के किनारे ठेला बंडियों पर भी लोगों का खाना पीना कम हो गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मास्क की कीमतों
को बढ़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस रघवेंद्र सिंह और जस्टिस अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से कहा कि ऐसे तमाम मेडिकल स्टोरों और कारोबारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो लूट मार में मसरूफ हैं। अमीरपेट में ग्रीन पार्क होटल के पास एक शख्स ने हालत नशे में अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। महलू की शिनाख्त मोहसिन की हैसियत से की गई है, जबकि हमलावर अब्बू ने मामूली बहस के बाद आज सुबह सैयद मोहसिन का गला किसी तेजधारी हथियार से काट डाला। मोहसिन की बरसरमौखा मौत हो गई। पुलिस संजीवा रेड्डी नगर मसरूफ तहकीकात है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने आज रियासती असेंबली में ऐलान किया कि कोरोना वायरस के सबब पूरी रियासत में 31 मार्च तक तमाम मदारिस और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ जिन इदारों में इम्तिहानात हो रहे हैं उन्हें खुला रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल और जिम को भी 31 मार्च तक बंद रखने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी कल दिल्ली में तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों को 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया था। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 89 पॉजिटिव केसेस की तौसीक हुई है। कोरोना वायरस की लपेट में आ जाने वाले मुल्क ईरान से आज 44 हिंदुस्तानियों का तख्लिया करवा लिया गया और उन्हें तैयारे में तेहरान से मुंबई लाया गया। अमले के 17 अरकान के अलावा मुसाफिरीन को मुंबई एयरपोर्ट से कुछ दूर के फासले पर एक अलहदा जगह ठहराया गया है ताकि उनका किसी दूसरे मुसाफिरीन से रब्ता ना हो सके। सरकारी ज़राए के मुताबिक इन तमाम मुसाफिरीन को हिंदुस्तानी नेवी टीम एक मखसूस जगह ले जाएगी जहां उनके तिब्बी मायने होंगे। हनूज ये पता नहीं चला कि इनमें किस किस में कोरोना वायरस के अलामात पाए जाते हैं। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया था कि इन तमाम के तिब्बी मायने नेगेटिव पाए गए। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने ट्वीट के जरिए बताया कि ईरान से हिंदुस्तानी मुसाफिरीन के एक दूसरे जत्थे को आज ला लिया गया है। जयशंकर ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने और मेडिकल टीम की सिताइश की और तख्लिये के ऑपरेशन में मदद करने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने बताया कि मज़ीद दूसरे हिंदुस्तानियों को लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि चीनी शहर वुहान, इटली और ईरान कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ज़बरदस्त दबाव के बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने आज IPL के मैचेस को 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया है। BCCI ने एक बयान में बताया कि कोरोना वायरस की वजह से इन खेलों को मुलतवी करना ज़रूरी हो गया था। इस फैसले से कबल दिल्ली हुकूमत ने कहा था कि वो कौमी दारुल हुकूमत में ऐसे खेलों की इजाज़त नहीं देगी। कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के नतीजे में आलमी और कौमी सतह पर कई खेलों के मुकाबले मनसूख करने पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस को लेकर परेशान ना हो। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिनों में कोई भी मरकजी वजीर बैरूनी दौरा नहीं करेगा। चुनाचे वो आवाम से भी अपील करते हैं कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। साबिक़ मरकजी वजीर मेनका गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस का जानवरों पर कोई असर नहीं पड़ता। वजारत सेहत ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात बताई है। चुनाचे अवाम को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाद सरकारी मौके में इंश्योरेंस कंपनियां और खानगी कंपनियां ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बीमारियां जानवरों में भी फैल रही हैं। मेनका गांधी ने कहा कि उनके इल्म में आया है कि इन अफवाहों से कुछ लोग परेशान हैं और चिकन और अंडे तक खाना तर्क कर दिए हैं। मेनका गांधी ने बताया कि वो पार्लियामेंट में इस मौजू को उठाएंगी ताकि गलत इत्तलात और अफवाहों का खला खामा किया जा सके। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।